Yes, hello students. Myself Dr. Vibhagna. Today I will teach you the chapter Nasa income. In Nasa income, I will tell you what is the difference between nominal GDP and real GDP. As you know that I am teaching economics from last 20 years in different schools, college and universities, and I have taught class 9 to 12th and BBA, MBA, BCom, MCom, and MA economics students I have also taught. So during the lockdown period, I have opened my channel, and in that channel I have uploaded more than 40 videos in it. Okay, so you please see my macroeconomics and microeconomics video properly so that you will get full marks in the examination. So today I will tell you the very simple question, that is nominal GDP or real GDP किसे कहते हैं. And that nominal GDP and real GDP, it comes many time in the board examination. So I will tell you what is nominal GDP, real GDP and conversion, and how we can do the numericals with the help of nominal GDP and real GDP. Now please come to the point. Nominal GDP. I am writing here nominal GDP. तो देखिए, जब हम नॉमिनल की बात करें तो जीडीपी में आपको मैं जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन इन माय वीडियो विच इज अपलोडेड I have earlier. Okay, so please see my video that then you understand what is the GDP, GNP. Now I'm talking about nominal GDP. So when we talk about the nominal GDP, means it refers to GDP at current price. It refers to GDP. It refers to GDP at current prices. We can see that इसमें हम current price देखते हैं. ये important आपको लिखना है, current prices. अब देखिए, it refers to GDP at current prices. अब देखिए मीन्स इट इज इसको कैसे लिखना है, जीडीपी की जो डेफिनेशन है वो लिख देंगे आपने. इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री, produced within the domestic territory of a country, produced within the domestic territory of a country, produced within the during an accounting year. ठीक है, during an accounting year, इसको लिखने के बाद आपने एक लाइन जरूर लिखनी है इसमें. ये जो लाइन मैं बताने जा रहा हूँ आपको, दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट. ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर एज एस्टिमेटेड यूजिंग द करंट ईयर प्राइजेस, यूजिंग द करंट ईयर प्राइजेस. ओके, हमें क्या करना है, करंट ईयर प्राइजेस देखना है, यूजिंग द करंट ईयर प्राइजेस. ओके, तो वी हैव डन नॉमिनल जीडीपी. नॉमिनल जीडीपी हम उसे कहते हैं जिसमें हम करंट प्राइस को देखते हैं. तो जितने मार्केट गुड्स एंड सर्विसेज जितनी प्रोड्यूस हो रही है पूरे साल भर में, और जो कि करंट प्राइस के हिसाब से है, आज के करंट प्राइस क्या चल रहा है, उसको हम नॉमिनल जीडीपी कहते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, कम टू द पॉइंट, रियल जीडीपी. नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द रियल जीडीपी. व्हाट इज रियल जीडीपी? डेफिनेशन इज ऑलमोस्ट सेम, बट थोड़ा सा करंट ईयर और बेस ईयर का इसमें अंतर है बस. ठीक है, नाउ कम टू द पॉइंट, रियल जीडीपी. नाउ रियल जीडीपी किसे कहते हैं? रियल जीडीपी मीन्स जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस. जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइजेस इज नोन एज रियल जीडीपी. जब हम कांस्टेंट प्राइस की बात करते हैं उसे बोलते हैं जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइजेस. ठीक है, तो हम इसे जीडीपी कैसे बोलेंगे? इट इज़ द आपने वही डेफिनेशन जीडीपी की लिखनी है. इट इज़ द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, क्योंकि जीडीपी है प्रोड्यूस्ड within the domestic territory of a country,
within the domestic territory of a country during an accounting year, during an accounting year, during an accounting year. उससे पहले ही मैंने आपसे कहा था you have to write one line during an accounting year, during an accounting year and using the base year prices. इसमें हम क्या लेते हैं, base year price लेते हैं हम, using the base year prices, using the base year prices. And when we talk about the nominal GDP, we can write out current year price. इसमें base year मतलब पुराना, जो पुराने साल में कितना प्रोडक्शन हुआ उसको हम base year price, we will take base year price. I have already explained real GDP. Real GDP means market value of all goods and services produced within the domestic territory of a country during an accounting year. पूरे साल भर में कितनी गुड्स एंड सर्विस बन रही है. बेस ईयर प्राइस हम लेंगे इसमें. बेसिकली वी विल टेक बेस ईयर. नॉमिनल में हम लेंगे करंट ईयर प्राइस, करंट ईयर प्राइस लेंगे. ओके, नाउ आई विल टेल यू द फॉर्मूला हाउ यू कैन डू द न्यूमेरिकल्स इन इट. देन वी विल डू 1 and 2 न्यूमेरिकल्स. Now students, please write down the formula. This formula is very important and it comes many times in the board examination. So first of all, I'm talking about nominal GDP. Nominal, this formula you have to learn by heart. Nominal GDP is equal to real GDP into price index divided by 100. प्राइस इंडेक्स डिवाइडेड बाई 100. प्राइस इंडेक्स जिसमें हम प्राइस निकालते हैं. प्राइस इंडेक्स देखो कितना करंट ईयर प्राइस है या बेस ईयर प्राइस है. ठीक है, अब मान लीजिए ये आपको फॉर्मूला है. अब मान लीजिए लेट सपोज डेट आपको फाइंड आउट करना है नॉमिनल जीडीपी. यू हैव टू फाइंड आउट, क्वेश्चन है यू हैव टू फाइंड आउट नॉमिनल जीडीपी. आपको नॉमिनल जीडीपी फाइंड आउट करना है. ठीक है, और आपको दे रखा है रियल जीडीपी. लेट सपोज डेट रियल जीडीपी आपको दे रखा है, लेट सपोज डेट रियल जीडीपी आपको दे रखा है 400. ओके, और प्राइस इंडेक्स आपको दे रखा है लेट सपोज डेट 100. तो प्राइस इंडेक्स आपको कितना दे रखा है, प्राइस इंडेक्स दे रखा है आपको 100. ओके, प्राइस इंडेक्स आपको लेट सपोज डेट 110, लेट सपोज डेट 110 दे रखा है. इसको निकालिए आप, फॉर्मूला लगाइए. तो रियल जीडीपी कितना निकला, 400 मल्टीप्लाई प्राइस इंडेक्स कितना है 110 अपॉन 100. तो 100 से कट गया, ये 4 आ गया और 4 1 जा 4, 440 आ गया. दिस मीन्स डैट नॉमिनल जीडीपी जो हो गया 440 हो गया. कितना हो गया, 440. देखिए मैंने आपको 400 यहाँ पे लिया है रियल जीडीपी, मैंने प्राइस इंडेक्स 110 लिया और 100. वी कैन फाइंड आउट नॉमिनल जीडीपी. तो कभी ऐसा भी हो सकता है कि एग्जाम में नॉमिनल जीडीपी दे रखा हो, करंट प्राइस दे रखा हो, और एग्जाम में रियल जीडीपी दे रखा हो, आपको प्राइस इंडेक्स निकालना है. देन यू कैन फाइंड आउट द प्राइस इंडेक्स. प्राइस इंडेक्स मीन्स करंट ईयर प्राइस या बेस ईयर प्राइस. One numerical I have done. Okay, another numerical we will do. One numerical we have done. Now another numerical we will do. What is second numerical? I am telling you how you can do it in the examination. Let's suppose that GDP at current price. GDP at, let us suppose that GDP at current prices. Current price दे दिया आपको in rupees. डेट इज़ इक्वल टू 500. ठीक है ना, 500 दे दिया और आपको जो इंडेक्स नंबर दे दिया लेट सपोज, और आपको दे दिया प्राइस इंडेक्स दे दिया आपको 110. फाइंड आउट रियल जीडीपी. तो आपने कुछ नहीं करना, आपने इसका फॉर्मूला जीडीपी एट करंट प्राइस कितना है 500. नॉमिनल जीडीपी दे रखा है 500. फॉर्मूला लगाया, यहाँ पे लिखा रियल जीडीपी. ठीक है, रियल जीडीपी कितना दे रखा है आपको, हमें रियल जीडीपी निकालना है, और इनटू प्राइस इंडेक्स कितना दे रखा है 110. प्राइस इंडेक्स जो दे रखा है 110 दे रखा है. ठीक है, और आपने यहाँ पे 110 लगाया और यहाँ पे क्या लगाया 100. तो हाउ यू कैन फाइंड आउट रियल जीडीपी. रियल जीडीपी इज इक्वल टू 500 इंटू 100 अपॉन 110. तो ये कैंसिल हो गया. ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान करने के लिए मैं क्या करता हूँ, लेट सपोज डेट मैंने यहाँ पे जीडीपी लिख दिया 550 लिख दिया. लेट सपोज डेट 550 सो दैट इजीली कैलकुलेशन हो जाए. मैंने यहाँ लिख दिया कितना हो गया 550.
ओके, कैलकुलेशन आसान करने के लिए मैंने चेंज कर दी वैल्यू, क्योंकि एग्जाम्पल लेना एग्जाम में आप पॉइंट पे भी निकाल सकते हैं, देयर इज नो एनी प्रॉब्लम। 550 ले लिया मैंने, ये क्या कर दिया 5 यहाँ पे दे रखा 550, लेट्स सपोज दैट 550 मैंने चेंज कर दिया ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। 550 इंटू 100 हो गया, ये कैंसिल हो गया। 11 5 जे 50 50 आ गया, तो ये आ गया 500। आप देख रहे हैं कि करंट प्राइस तो 550 था पहले, अब रियल मतलब बेस ईयर पुराना कितना था 500 था। मैंने जानबूझ के 550 लिखा है ऐसे ताकि इजीली कैलकुलेशन हो जाए, है ना। तो ये आपने देख लिया, यहाँ पे 550 आ गया, यहाँ पे 100 आ गया। रियल जीडीपी मैंने यहाँ पे निकालना है 110 यहाँ लिख दिया, आपने इसको 550 इंटू 100 कर दिया। 11 5 जे 55 50 कर दिया और ये 500 आ गया ताकि इजीली कट जाए, पॉइंट में भी निकल सकता है, देयर इज नो एनी प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, तो आज आपने नॉमिनल जीडीपी पढ़ा, रियल जीडीपी पढ़ा, और आज आपने नॉमिनल जीडीपी किसे कहते हैं, रियल जीडीपी किसे कहते हैं, कन्वर्जन किसे कहते हैं, फॉर्मूला आपने पढ़ा, और हाउ वी कैलकुलेट दिस। आपको वीडियो पसंद आए ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हम लोगों को मोटिवेशन मिल सके और हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना सकें। और मैं आपको 100% उम्मीद से गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि अगर आप ये बच्चे ढंग से करेंगे दे विल गेट फुल मार्क्स इन इकोनॉमिक्स। मैं क्लास चाहे 12th हो चाहे 11th हो, मैं कोशिश करूँगा कि प्रत्येक टॉपिक को मैं बढ़िया और बारीकी से अपने वीडियो में कराऊँ। कोई भी मैं आई डोंट वांट टू लीव एनी स्टोन अनटर्न। ओके, सो आई विल डू वर्क हार्ड in economics so that you will get full marks in the examination. Best of luck for your board examination. Thanks, Dr. V. Bhavna.